Hey everyone, welcome back to my YouTube channel Manisha Gupta ACCA. Again, I am back with a new video on where we are going to discuss question name Truth Company, which has been asked in March June 2023 attempt. Okay, so if you guys are preparing for your FI paper known as performance management, so this video is definitely going to be useful. Why? Because students struggle while they are doing the question from especially of section C from the performance measurement. So they usually used to struggle. So let's solve this question together and let's identify where let's solve this together and let's identify where you guys did the mistake and whether this video was useful or not. Now, if we look at the requirement, the question is asking to discuss the only performance of Truth Company for year 2007. Right, and also they left the note mentioning that only 6 marks will be available for the calculation, but yes, for explanation it carry 14 marks. So if you only left this question by calculating, you are only going to secure the 6 marks out of 20. But if you explain the point very well, then it for discussion part it carrying the 14. Okay, so only one requirement. So first of all, just let's read out the background of the question. The question is in a Truth Company, a owner managed travel company. So basically it's a travel company and operating in the country of VLAND. So this company is operating in the VLAND where domestic currency is VLAND. It offers a range of package holiday to the customer, and the holiday price it charged to customer include flight, ट्रांसफर टू एंड फ्रॉम रिजॉर्ट एंड एकोमोडेशन कॉस्ट. अब ऐसे देखा जाए कंपनी वीलैंड में ऑपरेट कर रही है एंड दे आर प्रोवाइडिंग द हॉलीडे पैकेज. और हॉलीडे पैकेज में भी नेशनल है कि इंटरनेशनल, इट डिपेंड्स, है ना. आप पढ़ते हैं, अभी देखते हैं क्या होता है, पर जहां तक मुझे लगता है इंटरनेशनल होगा. व्हाई? बिकॉज दे आर सेइंग द करेंसी ऑफ दिस ट्रूथ कंपनी इज डॉलर, है ना. अब यहाँ पे अगर इंटरनेशनल हुआ तो वहाँ पे एक्सचेंज रेट की बातें भी हो सकती है जो हमारे परफॉर्मेंस में इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है. Right, so it offer a range of holiday package to customer. Holiday package it charges to customer include flight cost, transfer to and from resort as well as accommodation cost. Okay, so basically उनका पैकेज में ये 3 चार्जेस कवर रहती है. The market is extremely competitive, all right. Until recently, the company only offered holiday to Europe. So basically, अभी तक वो सिर्फ यूरोप का पैकेज ऑफर करते आई थी. And last 2 year में देखा जाए, what they are mentioning, however, following a consistent 5% annual decline in the European holiday market over the last 2 year. So basically, वहाँ पे 2 साल से डिक्लाइनिंग में परफॉर्मेंस चल रहा है यूरोपियन वाला पैकेज पर. So इसीलिए कंपनी हैज डिसाइडेड टू एक्सटेंड इट कवरेज टू नॉर्थ अमेरिका, ओके, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ 2007. सो हम लोग कंपनी का परफॉर्मेंस इवेल्युएट कर रहे हैं फॉर द ईयर 2007, करेक्ट, ठीक है ना. और कंपनी उसी साल अपना पैकेज को एक्सटेंड कर रही है टू नॉर्थ अमेरिका, ठीक है. एंड व्हाट दे आर सेइंग, फ्लाइट टू नॉर्थ अमेरिका फ्रॉम वीलैंड आर लॉन्गर देन द फ्लाइट टू यूरोप फ्रॉम वीलैंड. सी, अब देखो यहाँ पे ट्विस्ट देखो, कंपनी पैकेज एक्सटेंड कर रही है फ्रॉम यूरोप टू नॉर्थ अमेरिका, ठीक है. अब पैकेज एक्सटेंड करेगी तो ऑब्वियसली न्यू कस्टमर, न्यू सेगमेंट ऑफ द कस्टमर को टारगेट कर रही है. सो दे विल बी अट्रैक्टेड. पहले वो यूरोप को सिर्फ टारगेट कर रही थी, तो मैं भी रेवेन्यू इंक्रीज हुआ हो. अब इंक्रीज किस सेक्शन में हुआ है हमारा, यूरोप वाला में कि नॉर्थ अमेरिका में? यूरोप वाला में जैसे मेंशन किया कि लास्ट 2 ईयर से डिक्लाइनिंग फेज में है ना. सो और इंक्रीज भी हुआ होगा तो इट विल बी सोनली कंट्रीब्यूशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका हो सकता है. अभी हम लोग जस्ट प्रिडिक्शन कर रहे हैं. और दूसरा चीज, दे मेंशन दैट द फ्लाइट टू नॉर्थ अमेरिका इज लॉन्गर देन द यूरोप फ्रॉम द वीलैंड.
सो दैट मीन्स यहाँ पे कॉस्ट बढ़ सकता है. वाई? क्योंकि फ्यूल कॉस्ट एक्स्ट्रा लगेगा. लॉन्गर फ्लाइट है तो कस्टमर को मील वगैरह सर्व करने में वहाँ पे भी कॉस्ट इंकर तो होगा, राइट. वहाँ पे मतलब कॉस्ट ओवरऑल इंक्रीज तो होगा इफ द जर्नी इज लॉन्गर एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन, है ना. And it is now the end of 2007. The following information is available. All right. At the beginning of 2007, following the company expansion to North America, Trot Company make an arrangement with a North American television station to place an advertisement every month. See, अब यहाँ पे ये एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट भी इंक्रीज होते हुए दिख रहा है मुझे फिलहाल. वाई? बिकॉज कंपनी हैव स्टार्टेड टू एडवर्टाइज इन द नॉर्थ अमेरिका टेलीविजन. ठीक है. So and each advertisement cost is $600. ठीक है. सो यहाँ पे हर एक महीना जो हम लोग प्लेस कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट, इट इज कॉस्टिंग $600. सो ये एडिशनल कॉस्ट हुआ ना जो हमारा प्रीवियस वन से. वाई? क्योंकि वी हैव डिसाइडेड टू एक्सटेंड आवर पैकेज टू द नॉर्थ अमेरिका, उसके वजह से कॉस्टिंग कर हुआ. So at the same time, Trot company reduced its level of advertising in the VLAN. So company ने यहाँ पे फिर cost cutting भी की है. अब यहाँ पे cost का मामला देखना पड़ेगा, increase है कि decrease. ठीक है. Okay, then 6 months ago, political unrest in VLAN caused $V to fall in value by an average of 25%. 25%. ठीक है. सो अब ऑब्वियसली पॉलिटिकल ये पार्ट बेसिकली एक्सचेंज रेट में हम लोग यूज कर सकते हैं. एक्सचेंज रेट का इम्पैक्ट कहाँ आएगा? जैसे कि कंपनी ने बोला कि वहाँ पे एकोमोडेशन कॉस्ट वगैरह पे इंक्लूड है पैकेज में. सो एकोमोडेशन कॉस्ट ऑब्वियसली जिस डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं वहाँ का होगा ना, वहाँ उस कंट्री का करेंसी होगा ना, वहाँ पे इम्पैक्ट क्रिएट करेगी ये. Trot company pay for all flight immediately when customer make a booking in the $V. So see, company is paying for the all the flight immediately when customer making the booking in the $V. कस्टमर $V में पे कर रही है, बट कंपनी जहाँ पे जा रहे हैं कस्टमर उस डॉलर में भी पे कर रही है. तो एक्सचेंज रेट ऑब्वियसली इम्पैक्ट क्रिएट करेगा. और यहाँ पे बोल रहा है पॉलिटिकल अनरेस्ट की वजह से डॉलर का वैल्यू गिरा है, $V का वैल्यू गिरा है बाई 25%. During the year, it also began using the new booking agent for the flight who promised more competitive price. Okay, customers usually book their holiday at least 6 months in advance of their departure and are required to pay their holiday in the full at the time of booking in the $V. The cost of accommodation transfer are always paid by Trot company in the currency of the country being visited, and these costs are paid once the customer holiday is complete. See, I told you ये Trot company कस्टमर से पेमेंट ले रही है $V में, बट कंपनी जो accommodation कॉस्ट, ये जो ट्रैवल ट्रांसफर कॉस्ट है वो उस कंट्री के करेंसी के अकॉर्डिंग पे कर रही है. ठीक है. सो एक्सचेंज रेट यहाँ पे इम्पैक्ट यहाँ भी करेगा. Midway through 2007, a Trot company employee was awarded $22,000 compensation payment after a court decided that she was unfairly dismissed. तो ऑब्वियसली यहाँ पे लीगल एक्शन वगैरह का बात है जिसकी वजह से कंपनी है पेड कंपनसेशन कॉस्ट ऑफ 22,000. अब इस वजह से कॉस्ट इंक्रीज तो हो रही होगी, बट ये ऐसा कॉस्ट वन ऑफ द कॉस्ट है, मतलब एवरी ईयर तो नहीं होगा ना. एंड फर्दर क्वेश्चन इज सेइंग ऑल रिमेनिंग स्टाफ वेर गिवन 10% पे राइज विद इमीडिएट इफेक्ट इन एन अटेम्प्ट टू रीअश्योर देम. अब इसके वजह से सारे एम्प्लॉय का कॉस्ट भी 10% से इंक्रीज हुआ है. अब इसीलिए मे भी हमारा एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट इंक्रीज हुआ होगा. अगर 10% से है तो ये रीजन हो सकता है, बट मोर देन 10% देयर माइट बी सम अदर रीजन एज वेल. Trot company is financed partly by medium-term loan. Okay, and one of the loan came to end 3 months ago. Company therefore had to renegotiate to the new loan. The new loan incurred $3,000 finance fee and higher interest rate than the old loan. See, अब यहाँ पे इंटरेस्ट एक्सपेंस भी इंक्रीज हुआ होगा. उसका इंक्रीज होने का एक कारण तो है कि इन्होंने लोन को रीनेगोशिएट किया है उस वजह से, और फाइनेंस फी वगैरह भी इंक्रीज हुआ है विच इज द वन ऑफ कॉस्ट. अगेन इसके वजह से हमारा कॉस्ट इंक्रीज हो रहा होगा.
New loan also covered the purchase of new V$2,000 computerized bill system which was expected to reduce administration cost by 50%. See, अब ये हमारा भी वन ऑफ द कॉस्ट है, एवरी ईयर हम लोग परचेज तो नहीं करेंगे बट इसने तो हमारा कॉस्ट सेविंग भी किया है, वो भी देखना पड़ेगा. Result of Toad company for last 2 years, they have provided revenue, cost of sales, then other expense like office rent वगैरह, salaries का portions, advertisement का cost, right, finance cost and miscellaneous. Okay. सो नेट प्रॉफिट इस साल का लॉस में है. लास्ट इट वॉज प्रॉफिटेबल अराउंड 77,700 बट लॉस इज अराउंड 12,000. The owner of Toad company has looked at 2007 result and is extremely disappointed. Obviously maybe they get disappoint हो गए because कहाँ लास्ट ईयर 77,700 का प्रॉफिट, कहाँ इस साल 12,000 का लॉस. टोटली ऑपोजिट है ना. Having seen the business has made a loss, he feel like whole expansion in North America was a bad idea. अभी देखते हैं bad idea था कि good idea obviously, but exchange rate वगैरह certain cost वगैरह increase तो हुआ है और certain cost यहाँ पे one of the cost है जो every year incur नहीं होगा, वो कभी कभी आएगा, वो भी हम लोग को देखना पड़ेगा and explanation provide करना पड़ेगा. So now ये यहाँ पे क्वेश्चन इज ओनली आस्किंग टू डिस्कस द परफॉर्मेंस ऑफ ट्रोड कंपनी, जिसमें 6 मार्क्स वाज ओनली अवेलेबल फॉर द कैलकुलेशन और बाकी का मार्क्स दैट मीन्स 14 मार्क्स इज फॉर डिस्कशन पार्ट. ठीक है, यहाँ तक ठीक है. एक सेकेंड. हाँ, नाउ अगर ये क्वेश्चन हम लोग देखा जाए विच पार्ट और विच सेक्शन ऑफ सिलेबस दे हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम सेक्शन ई, जिसको परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड कंट्रोल भी बोलते हैं. ठीक है, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट स्ट्रगल इन दिस एरिया. इट्स वेरी लाइक नेचुरल ऑब्वियसली बिकॉज अगर प्रैक्टिस नहीं है तो डिफिकल्ट तो फील तो पक्का होना ही है. ठीक है, और क्वेश्चन पढ़ के क्या लगा, दे आर जस्ट आस्किंग टू इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर कंपनी एंड द नेम इज ट्रोड कंपनी. ठीक है, और ये हमेशा मतलब लाइक सेक्शन सी का कोई भी क्वेश्चन लाइक होता है ना आपका परफॉर्मेंस मेजरमेंट से भी हो सकता है, बजट से भी हो सकता है या फिर वेरिएंस से भी पूछ सकता है. सो दे कैन टेस्ट एनी पार्ट ऑफ द सिलेबस. ठीक है, इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव ए प्रैक्टिस ऑफ दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन. नया क्वेश्चन में तो दे कैन आस्क एनीथिंग बट जो हमारे पास है उसमें तो एटलीस्ट कॉन्फिडेंस तो होना पड़ा है ना, राइट. और मेन चीज एग्जाम टेक्निक के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको टाइम बहुत अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा बिकॉज ये क्वेश्चन लास्ट में करते हैं, हरी में ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं सकता है और इजी मार्क्स भी लूज कर सकते हैं. समझे. सो जो भी आपका टेक्निकल नॉलेज है उसको समझकर यू नीड टू अप्लाई इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन. देयरफॉर आपका एग्जाम टेक्निक एंड टाइम मैनेजमेंट विल प्ले very important role while you guys are solving this kind of question. ठीक है, और इनफैक्ट हर एक पैराग्राफ को पढ़ने के बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है स्पेशली कंपनी का नेचर, किस टाइप ऑफ मार्केट में वो ऑपरेट कर रही है. जैसे यहाँ पे बताया कि ट्रोड कंपनी इज ट्रैवल कंपनी एंड दे ऑफर द हॉलीडे पैकेज. सो अभी तक उन्होंने सिर्फ यूरोप का पैकेज ऑफर किया था बट नाउ दे हैव एक्सटेंडेड इट टू द नॉर्थ अमेरिका, जो कि टोटली एक न्यू लोकेशन है कंपनी के लिए. बहुत सारे चैलेंजेस भी फेस करना पड़ सकता है. ठीक है, और क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हम लोग को वर्ड पे भी ध्यान देना है. जैसे कि क्वेश्चन ने कौन सा वर्ब यूज किया है. ठीक है, वाई आई एम सेइंग कि वर्ब पे देखना पड़ेगा बिकॉज ये वर्ब आपको ये नहीं बताता कि आपको क्या करना है बट आपको ये भी बताता है कि आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आपको क्या लिखना है. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे उन्होंने यूज किया है डिस्कस. सो डिस्कस मीन्स यू नीड टू डिस्कस लाइक कंसिडर द डिबेट ऑफ फ्रॉम बोथ साइड ऑफ पॉइंट, लाइक अच्छा पॉइंट भी बुरा पॉइंट भी. You just can't like explain the good point, ignore the bad one, or just explain the bad point, ignore the good one. No. Okay, so you need to consider the both pros and cons of the issue. Okay, so आपको यहाँ पे दोनों चीज एक्सप्लेन करना है परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से. दूसरा चीज
दूसरा चीज एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट, एक्स्ट्रा नोट जो क्वेश्चन ने दिया है उस पर भी ध्यान देना। जैसे कि इस क्वेश्चन में दे प्रोवाइडेड अस विथ ए नोट। नोट में क्या था कि 6 मार्क्स इज ओनली अवेलेबल फॉर द कैलकुलेशन, 40 मार्क्स इज अवेलेबल फॉर द डिस्कशन। समझे? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट जो भी आप कैलकुलेशन करें यहाँ पे और आप डिस्कस भी कर रहे हो, it should be relevant to the information provided in the scenario, or whatever the calculation you have done, it should be based on the information given in the scenario. अपने मन से कोई रैंडम फिगर लेके आपको यहाँ पे कैलकुलेशन भी नहीं करना है, एक्सप्लेनेशन भी नहीं करना है, जो दिया है उसके बेसिस पे डिस्कस करेंगे और कैलकुलेट करेंगे। Next thing, what you guys need to do, you need to look at the marks as well. जैसे पे यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट है और वो 20 मार्क का है, समझे? उसमें से भी उन्होंने क्या बोला, 6 मार्क आपका कैलकुलेशन का है, 14 मार्क डिस्कशन का है। सो ये क्या इंडिकेट कर रहा है आपका नंबर ऑफ कैलकुलेशन टू परफॉर्म एंड टाइम टू स्पेंड ऑन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, स्पेशली ऑन डिस्कशन। सो आपको यहाँ पे टाइम ज्यादा कहाँ पे देना है, डिस्कशन के पार्ट पे, ना कि कैलकुलेशन के पार्ट पे। क्यों? क्योंकि डिस्कशन का पार्ट आपका ज्यादा वेटेज कैरी कर रहा है, समझे? एंड द लास्ट चीज, आपको प्रेजेंटेशन, हेडिंग और टेबल ये सब अच्छे से अरेंज करना है, ठीक है? आपको स्प्लिट करना है, कौन से पार्ट, कौन से रेशियो को आप एक्सप्लेन कर रहे हो और एक्सप्लेनेशन किस रिलेटेड है, वो सब चीज आपको क्लियरली स्प्लिट करना है, समझे? ओके अब मैंने सिनारियो स्कैन किया था, वहाँ पे मेन पॉइंट चीज हम लोग ने क्या कवर किया था। जैसे कि पहले ही बोला, ये ऑनर मैनेज कंपनी है और दूसरा ये कहाँ ऑपरेट करी है, वी लैंड में है। इसका डॉलर बताया, मतलब ये कंपनी में भी एक्सपैंड करी अदर लोकेशन में, जो कि नीचे लिखा हुआ था। सो कंपनी ऑब्वियसली कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में है, जिस पहले ये यूरोप वाले कस्टमर को सिर्फ टारगेट करते थे, बट नाउ दे आर टारगेटिंग टू द नॉर्थ अमेरिका वन एज वेल। अब इसके बाद उन्होंने एडवर्टाइजमेंट की भी बात की थी कि उन्होंने नेशनल नॉर्थ अमेरिका टेलीविजन स्टेशन पे भी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, बट अपने जो कंट्री में है उसमें उन्होंने एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट रिड्यूस किया है। और दूसरा फिर करेंसी एक्सचेंज रेट के बारे में भी उन्होंने बताया, फिर सैलरी के बारे में कि एम्प्लॉय को डिसमिस किया था, जिसकी वजह से 10% सबका सैलरी बढ़ी थी। और एसेट परचेजिंग एज वेल एज फंडिंग फाइनेंस का पार्ट का डिस्कशन लास्ट में बताया था, ठीक है? So I have started with the paragraph mentioning that the Trot company owner is disappointed with the performance of Trot company for the year 2027. We can write this as well here, because company made a loss of 12,000 in current year, whereas company was profitable in the previous year. However, the performance has been deteriorated. It may be unfair to conclude that this was due to the expansion of the package to the North America, okay, but it could be due to various other factor or one of the various one of the cost or reason, right? So we can just start from writing this kind of paragraph, ठीक है? Now मैंने revenue performance को explain किया है। रेवेन्यू में अगर देखा जाए, यहाँ पे रेवेन्यू के पोर्शन में द रेवेन्यू ऑफ यूरोप मार्केट हैज बीन डिक्लाइन, वेयरएज नॉर्थ अमेरिका हैज बीन इंक्रीज। लास्ट ईयर तो था ही नहीं, बट स्टिल था। ओवरऑल रेवेन्यू देखा जाए, इट हैज बीन इंक्रीज। सो रेवेन्यू इंक्रीज फ्रॉम 640,000 इन 2006 टू 768,000 इन 2007। अगर परसेंटेज वाइज निकाला जाए तो ये 20% का इंक्रीमेंट है, ठीक है? ये 20% का इंक्रीमेंट है। एग्जामिनर ने यहाँ पे क्या कमेंट छोड़ा हुआ था, उन्होंने बोला था कि स्टूडेंट सिर्फ नंबर में चेंजेस निकाल के छोड़ देते हैं, इंक्रीज है कि डिक्रीज बोल देते हैं, बट अगर आप परसेंटेज में कैलकुलेट करोगे तो बेटर रहेगा, उन्होंने बोला है, ठीक है? सो परसेंटेज में ट्राई टू कैलकुलेट। और परसेंटेज कैलकुलेशन में स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते हैं, हम लोग लास्ट ईयर से कंपेयर कर रहे हैं, सो बेस फिगर शुड बी ऑफ द लास्ट ईयर। स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते हैं, वो करंट ईयर का ले लेते हैं। सो परसेंटेज कैलकुलेशन में भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, ओके? सो नाउ आई हैव
what I have explained for the increment in overall revenue, there is significant increase and in the revenue. There is significant increment in the revenue in year 2007, and this suggests that expansion in North America successfully generated additional revenue to the Trot company. Whereas if we look at the more detail of this overall revenue figure, the revenue contributed from the North America package was 256,000 in its first year, and it is helping to compensate the continued declining in the European market. Obviously क्वेश्चन में भी मेंशन किया गया था कि लास्ट 2 years से इनका रेवेन्यू फॉल हो रहा है यूरोप मार्केट में, राइट. इन्होंने उसी लिए एक्सपांड किया था. तो जो डिक्लाइनिंग फेज था उसको कंपनसेट करने के लिए ये नॉर्थ अमेरिका ने एडिशनल रेवेन्यू ऑब्वियसली जनरेट करके दिया, जहाँ की नया मार्केट है, नया प्लेस है, बट स्टिल दे हैव जनरेटेड द रेवेन्यू ऑफ 256,000. अब ये रेवेन्यू जनरेट करने का कारण एक और हो सकता है, दैट इज द एडवर्टाइजमेंट. उन्होंने एडवर्टाइजमेंट पे तो खर्चा किया था तो, राइट. और एक और चीज हम लोग देख सकते हैं, इन्होंने बोला कि 5% से डिक्लाइन हो रहा है यूरोप वाला रेवेन्यू का पोर्शन, राइट. इस बार कितना परसेंट से डिक्लाइन हुआ, लेट्स चेक इट आउट. 5 से 12 माइनस 640 डिवाइड बाई 640. अगर ये करते तो इस बार 20% से डिक्लाइन हुआ, जबकि 5% नहीं है इस बार का ट्रेंड. सो दैट मीन्स कंपनी ने जो एडवर्टाइजमेंट रिड्यूस किया है यूरोप में, इस वजह से और इम्पैक्ट दिख रहा है. ये भी हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट व्हाट आई हैव एक्सप्लेन, the European holiday market has been falling by 5% annually for the last 2 years, but we have just seen from the calculation in the current year it has been fallen by 20%, and the reason could be the reducement. The company has reduced its advertisement in the Europe company. Okay, so and also we can also mention that that expansion in the North America was very important for the company in the long term sustainability, because अगर वो नहीं एक्सपांड करती तो कंपनी ऐसा डिक्लाइनिंग फेज में जाती रहती, तो एक पॉइंट में आगे कंपनी शटडाउन भी हो सकती थी. बट उसको अवॉइड करने के लिए, लॉन्ग रन में कंपनी चलती रहे, उस चीज को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने एक्सपांड किया, और एक्सपांशन का भी अच्छा रिजल्ट आया. रेवेन्यू 256,000 एडिशनली जनरेट करके दे रही है. ठीक है, देखा जाए सो वी जस्ट कांट ब्लेम कि नॉर्थ अमेरिका की वजह से परफॉर्मेंस बैड हुआ है, बट स्टिल इट इज डिफिकल्ट टू असेस वेदर द नॉर्थ अमेरिका एक्सपांशन इटसेल्फ इज प्रॉफिटेबल और नॉट, बिकॉज कंपनी हैज